بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکیٹ مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے, اور آج ہم کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے علاوہ ایشیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ میں موجود ہے, جسے کہتے ہیں عبداللہ ہارون روڈ. اور تھوڑا سا مختصر تبصرہ کرتا چلوں کہ عبداللہ ہارون روڈ کیوں رکھا گیا. 1872 میں عبداللہ ہارون پیدا ہوئے کراچی میں, اور ایک چھوٹا سے تجارت سے کاروبار شروع کیا جنا مارکیٹ سے. اور کہا جاتا ہے کہ جنا مارکیٹ اور جوڑیا بازار ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا, اور ان کی خدمات پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ انہوں نے اپنی رفاقت رکھی اور اپنا آزادی کے لیے کام شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزادی پاکستان کے لیے بڑی محنت و کاوش کی. ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ہارون ایک بڑا مقام رکھے, اور ان کے نام پر یہ عبداللہ ہارون روڈ منسوب کیا گیا. مگر ہم بات کرتے ہیں 1976 اور 77 کی پہلا کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کا انتخاب ہوا, اور بخاری صاحب پہلے صدر تھے, اور پھر بعد میں محمد عرفان خان مرحوم شہید جنہیں 4 مرتبہ صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. یہ بات تھی کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کی. اور آج ہم کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے مرکزی دفتر میں بیٹھے ہیں. رضوان صاحب السلام علیکم. رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے بے شمار مسائل ہیں, اور جہاں کرونا وائرس کی دوسری لہر بھی آ چکی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایسوسیشن کا اپنا تعارف کراؤں گا کہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کراچی کی سب سے نمائندہ جماعت ہے, جو سن 1978 میں معرض وجود میں آئی. جب ہمارے ایسوسیشن کا جو رجسٹریشن ہوئی, میرے والد اس وقت چیئرمین تھے. اس کے بعد تقریباً وہ 28 سال جو ہے اس الیکٹرانک مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہے. بیسیکلی پہلے مارکیٹ جو تھی وہ پہلے عبدالرحمان روڈ اور ریگل ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر کراچی جو ہے بڑا, کراچی کی آبادی بڑی, تو اس کے ساتھ سب ایریا اور بہت سی مارکیٹیں ہمارے وجود میں آئی. اس کے سلسلے میں پھر ہمارا جو کراچی الیکٹرانک ایسوسیشن کا جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہوا. پورے کراچی سے جو ہے ہمارے تاجر جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اس میں پھر وسعت پیدا ہوئی. الیکٹرانک سے پھر موبائل بھی, اور دور جدید کی نئی نئی چیزیں جو ہے اجازت ہوئی. اس کے بعد جو ہے یہ کارواں بڑھتا گیا, اور اللہ کا شکر اب تقریباً کراچی میں جو تقریباً 10,000 کے قریب دکانیں ہیں, جس میں 6 سے 7,000 ایسوسیشن کے ممبران ہمارے رجسٹرڈ ہیں. اور ہم نے مارکیٹوں میں چیئرمین, وائس چیئرمین, سینئر چیئرمین جو ہمارے عہدے ہوتے ہیں ہم نے وہاں کو دیے. اور اللہ کا شکر ہے ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ چیمبر کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ کراچی الیکٹرانکس کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اس ایسوسیشن کو جو اوپر لے جانے میں اس میں میرے والد صاحب کا اور ہمارے جتنے بزرگ جو تھے ہمارے جو ابھی موجود ہیں, ان کا جو ہے ساتھ رہا. اور جتنے حافظ چمن صاحب تھے, عبداللہ چمن صاحب ہیں, عبداللہ مصطفیٰ خان ہیں, احسان الہی صاحب ہیں, اور بہت سے لوگوں کا انتقال. پرویز خیتر صاحب تھے, عبید اللہ خان صاحب تھے جن کا انتقال. وہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے یہ شروع کیا سن 1978 سے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایسوسیشن جو ہے جو اس کا جو وسعت ہے وہ بڑھتی گئی. اور اللہ کا شکر ہے وہ نامی گرامی ایسوسیشن جو ہے پورے پاکستان میں, کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں جو ہے کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کا نام ہے. اچھا رضوان, کتنے مسائل ہیں یہاں پر؟ مسائل کے بے شمار انبار ہیں. مطلب یہ کہ ہم دیکھا جائے تو لائن آرڈر کا بھی مسئلہ ہے, پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے, اور مختلف بارشیں جب ہوئیں تو دریائے سندھ کا منظر بھی یہ مطلب تجارتی مراکز کر رہے تھے. تو ابھی کرونا کی دوسری لہر ہے, اور جو 18 مارچ 2020 کو جو کرونا وائرس تھا تو 8 ماہ کاروبار بند رہا, تو اس میں آپ نے اپنے دکانداروں کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو کرونا کی جو ایک لہر آئی پورے دنیا میں, اس سے پاکستان بھی افیکٹ ہوا. اس میں ہمارا بیسیکلی کاروبار جو تھا وہ بالکل بند ہو گیا. دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں جو لوگوں نے, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اپنے عوام کا بھی اور اپنے تاجروں کا بھی, لیکن ہمارا شکوہ یہ رہا کہ سندھ گورنمنٹ اور نہ وفاقی گورنمنٹ کسی نے تاجروں کی کوئی مدد نہیں کی. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں کے روپے کی جو ہے ہم نے راشن دیا. اپنے دکاندار جو بیچارے اتنے جو روزمرہ کے جو کام کرتے تھے یا جو کام جو ہے جن کا افیکٹ ہوا تھا ان کو راشن بھی دیا, ان کی مدد بھی کی. لیکن اس کے بعد سرکار نے ہم سے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے نہیں کیے. تو رضوان, آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب سے بھی ملاقات کی, وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی, اور مطلب مختلف موقع پہ اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سندھ یا وفاق کی سطح پر کوئی رسپانس نہیں ملا. وفاق اور سندھ کا جو ہے آپس کا ٹکراؤ ایک سب سے بڑا وجہ یہ تھی, اس سے جو ہے افیکٹڈ ہوا کراچی خاص طور پہ. لیکن کوئی جو ہے سننے والا نہیں تھا, کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ جتنے بھی جو ہم نے 8 مہینے گزارے,
کہ تمام کراچی کے تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے وسائل جو تھوڑے بہت تھے اس کے تحت انہوں نے جو ہے یہ گزارے. لیکن اب جو ہے دوبارہ پھر کرونا کی لہر آئی, اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹیں بند ہونے کا 6 بجے جو ہے مارکیٹیں بند کرنے کا آرڈر نکالا گیا. اس پہ پھر ہم نے آواز اٹھائی تو اللہ کا شکر ہے سندھ گورنمنٹ نے ہماری بات مانی کہ ہماری مارکیٹیں 8 بجے. لیکن کراچی علاوہ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں 10 بجے اور اس کے زیادہ ٹائم پہ جو ہے مارکیٹیں کھلنی, تو یہ چیز غلط ہے. اب کرونا میں مانتا ہوں کرونا ہے, لیکن اس کو جو ہے آپ سیفٹی میجر لے کے ہی جو ایس او پی ہے اس پہ عمل درآمد کر کے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک میں نہیں آتا, ترقی پذیر غریب ملک ہے, 3rd ورلڈ کنٹری ہے ہماری. تو ہم تو ویسے ہی بیچارے غربت میں پسے ہوئے ہیں, اور چھوٹا تاجر ہم چھوٹے تاجر کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ تو بالکل ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے آفٹر شاک اب آنا شروع ہو گئے. جو مارکیٹیں 8 مہینے بند ہوئی وہ بیچارے ڈیفالٹ بھی کر گئے, دکانیں بند ہو گئیں. وہ اپنے لوگوں اپنے جو سیلری تھی وہ نہیں دے پاتے, اپنی کرایہ نہیں دے پائے, وہ مارکیٹیں بند ہو گئی. لیکن سرکار نے اس کے اگینسٹ یا اس کے فیور میں ہمارے ساتھ کوئی. رضوان, آپ لوگ نے کئی میٹنگیں کی اور یہی مطالبہ کرتے تھے کہ بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے, تو حکومت نے تو آپ کی کوئی نہیں سنی, کیونکہ آپ اربوں روپے کا ٹیکس یہ کراچی شہر وفاق اور سندھ کو ادا کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ تاجروں کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں وجہ بتاؤں میں آپ کو, تاجروں کو جو ہے نا جو ہے نظر انداز اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی جو اوپر لیول کے لوگ ہیں, جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کبھی چھوٹے تاجر کی بات نہیں کرتے. چھوٹے تاجر مین ریڑھ کی ہڈی ہیں کراچی کی, کیونکہ اگر انڈسٹری چلتی ہے تو ہم دکاندار جو ہیں وہ چلاتے ہیں, ہم ان کا مال بیچتے ہیں, ہم فرنٹ فوٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ہم زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں صرف انڈسٹری کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے. چھوٹے تاجروں کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کی. چھوٹے تاجروں کو آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے فیور نہیں دی, کوئی جو ہے ان کی جو ہے سپورٹ نہیں کی, کوئی ان کو ٹیکسز میں چھوٹ نہیں دی. انہوں نے جو کہ سب سے زیادہ جو ہے اپنا جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا ریونیو دیا, اپنا ٹائم دیا, اپنا خون دیا اس شہر کو, اس ملک کو. لیکن چھوٹے تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ نہ. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ تاجر تنظیموں کی مختلف جو ہے وہ ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں اور حکومت کو یہ معلوم ہو کہ ان میں آپس میں اتحاد ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہو؟ دیکھیں وجہ یہ جتنے بھی سرکار ہے ان کو سب پتہ ہے کہ کون ایسوسیشن بڑھ سکتی ہے, کون جو ہے لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں اور کون جو ہے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگر حکومت کی نیک نیتی ہوگی تو یہ شہر بھی چلے گا, یہ ملک بھی چلے گا اور اس کے جو ہے مسائل بھی حل ہوں گے. اگر گورنمنٹ چاہے گی, اگر گورنمنٹ نہیں چاہے گی, وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, تو دوسرے لوگوں نے کیا وہی جو ہے ابھی بھی یہ گورنمنٹیں کر رہی ہیں. لیکن ان کو عوام کے کام سے سروکار نہیں, عوام جو ہے وہ پریشان میں تکلیف میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ ہمارے کراچی شہر میں صفائی ہے, نہ آپ سیوریج کا نظام صحیح ہے, نہ پینے کو پانی ملتا ہے, جبکہ 70% ریونیو وفاق کو گورنمنٹ کو دیتا ہے اپنا کراچی, اور 98% سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے. تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حیثیت یا ان کو وہ رتبہ یا وہ فیسلٹی نہیں دی جا رہی. کیا وجہ ہے؟ یہ تو دیکھنا چاہیے. جو صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کراچی, کیا ہم ختم کر دیں گورنمنٹ کو ٹیکس دینا؟ ہم اب جو بھی ٹیکسز ہیں اب یہی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کراچی کے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں. اچھا رضوان صاحب, ابھی دیکھا گیا FBI کے چیئرمین تھے شبر زیدی, اور انہوں نے آپ لوگوں پر ٹیکس کی ایک بھرمار کر دی تھی. اس کے بعد آپ لوگوں نے زبردست مظاہرے کیے اور تمام تاجر ایک پلیٹ فارم پر آیا اور مظاہرے بھی کیے, ریلیاں بھی نکالی, اور ایک اس پہ تھی 50,000 روپے کی شرط دی تھی شناختی کارڈ کی, جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ شرط جو تھی وہ ختم بالکل نہیں, آپ صحیح بات کرتے ہیں, لیکن اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے. وہ جو اس پہ جو زور دیا جا رہا تھا کہ بھائی 50,000 پہ جو ہے شناختی کارڈ لیں گے یا 50,000 پہ جو ہے وہ کچھ ٹیکسز لگیں گے, وہ شرط جو ہے وہ FBI نے جو ہے میرے خیال میں IOF کی کوئی مطالبات تھے اس کی وجہ سے وہ کر رہی تھی, لیکن وہ ابھی اس پہ نرمی کی ہے, لیکن وہ موجود ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہی ہیں کیونکہ ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ جو 50,000 یا لاکھ روپے یا شناختی کارڈ, یہ شناختی کارڈ کی شرط کیوں رکھی آ رہی ہے؟ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو ٹیکس نہیں دے رہے, جو ٹیکس نہیں دیتے آپ اس پہ گیرا تنگ کریں, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ اسی کو دبا رہے ہیں. اس طرح سے نہ جائے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کراچی کے اندر وفاقی اور سندھ حکومت یہ بار بار کہتی ہے کہ ہم تاجروں کو لے کے چلیں گے, جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس ایک بڑا ادارہ ہے, وزیر اعظم آتے ہیں, چیمبر کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, جبکہ انہیں پتا ہے کہ چھوٹے تاجروں میں ایک طاقت ہے, تو وزیر اعظم آتے ہیں, چیمبر والے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں, تو اس پر بھی کچھ آواز اٹھاتے ہیں یا صرف چیمبر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ دیکھیں ہماری ایسوسیشن جو ہے
وہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. ہم ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں, ہم ہر جگہ جو ہے لیٹر دیتے ہیں اور ہماری بات بھی سنی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم جائز بات کرتے ہیں, ناجائز بات نہیں کرتے. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو ان کو کم سے کم چھوٹے تاجروں کو بلانا چاہیے, ان کے نمائندوں کو بلانا چاہیے. آپ جو صرف جو آپ بات کر رہے ہیں انڈسٹری لگانے کی یا انڈسٹری بڑھانے کی, اصل میں انڈسٹری جب بڑھے گی جب چھوٹے تاجر جو ہے خوشحال ہوگا, چھوٹے تاجروں کا کاروبار چلے گا. چھوٹے تاجر بھی چاہتے ہیں انڈسٹری لگانا, آپ ان کو فائدہ دیں. آپ صرف ارب پتی کو خرب پتی نہیں بنائیں, آپ جو لکھ پتی ہے اس کو بھی کروڑ پتی بنانے کا موقع دیں. لوگ جو ہے چھوٹا تاجر جو ہے وہ زیادہ آپ کو جو ہے ریونیو دے سکتا ہے اور دینا چاہتا ہے, آپ اس کو فیسیلیٹ کریں. آپ صرف انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ طرح ناجائز ہے. جس کے بعد چھوٹی بوڑھی ہے, چھوٹا پیسے ہے, وہ اس کو کاروبار کرنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں. اچھا رضوان, بات کرتے ہیں ہم 2017 کی, اور آپ نے ایک 3 روزہ نمائش کی تھی ایکسپو سینٹر میں, اور تمام پاکستان کے جتنے بھی الیکٹرانکس کے لوگ تھے انہوں نے اپنے وہاں اسٹال لگائے تھے, اور اس میں میجر محمد سعید جو کہ ڈی جی رینجرز تھے وہ آئے, انہوں نے ایک بچے کو 2 لاکھ روپے بھی دیے تھے, اور 7 شریف میں ایک دھماکہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نمائش تھوڑی تھی رک گئی. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو آئندہ کوئی ارادہ ہے کوئی ایسی نمائش کرنے کا؟ دیکھیں آپ, جو پہلے جو حالات تھے, سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان آرمی کا اور سندھ رینجرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کراچی پولیس اور سندھ پولیس کا, کہ انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دے کے کراچی میں امن بحال کیا. تو یہ سن 2009, 10, 11, 12 جو بڑا حالات خراب تھے, اس کے بعد جو ہے اس وقت کے جو ہمارے چیف عوالم اسٹاف تھے جناح صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کی وجہ سے کراچی میں امن بحال ہوا. اس وقت کے ڈی جی رینجرز, اس وقت کے ڈی جی ISI اور سندھ پولیس نے اس وقت کام کیا, تو ہمارے کراچی کے حالات بہت بہتر ہو. اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو حالات خراب تھے. اب لوگ جو ہے لوگ جو ہے کاروبار چلنا شروع ہوا, اس کے بعد یہ کرونا افیکٹڈ ہو گیا. دیکھیں وہ ہم نے ایگزیبیشن جو کی وہ اپنی مدد آپ کے تحت کی, وہ سب سے بڑی الیکٹرانکس کی ایگزیبیشن تھی. اس میں ڈی جی رینجر صاحب, ہمارے میجر جنرل آصف سعید, اپنا میجر صاحب جو ہے سعید صاحب آئے ہمارے پاس, انہوں نے سپورٹ کیا. اور جو ہنر مند لوگ تھے, جو بچے ہنر مند جو تھے, جو جانتے تھے بھائی IT کے توسط سے, ان کو سپورٹ بھی کیا, ان کو پیسے دیے, ان کو گفٹ دیا, اس کو اسناد دی. تو کراچی میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بچے ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے. صرف گورنمنٹ کی جو سپورٹ چاہیے, وہ گورنمنٹ ابھارے گی تو جو ہے یہ شہر جو ہے اور ترقی کرے گا, اور اس ملک کو جو ہے ملک میں جو ہے وہ ریونیو بھی لائے گا, اور اس پاکستان کو ترقی دے گا. اور جہاں تک آپ نے معلوم کیا کہ وہ ایگزیبیشن کا, انشاءاللہ یہ کرونا سے ہم جب نکلیں گے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اسی طرح بلکہ اس سے بڑی ایک ایگزیبیشن کریں الیکٹرانکس کی, جس میں تمام پاکستان کی جو مصنوعات ہیں وہ رکھی جائیں. سلیم بھائی السلام علیکم. سلیم بھائی آپ تو بہت پرانے, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ہیلتھ بھی بتا رہی ہے کہ آپ بہت پرانے ہیں, اور یقینی طور پہ محمد عرفان خان کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہے. تو کچھ ان کی پیاری سے کچھ باتیں بتائیں جو عرفان صاحب نے کبھی آپ کو ڈانٹا بھی ہو, اور کوئی ایسے کام تو جو آپ نے نہیں ہونے تھے وہ عرفان صاحب نے چند منٹ میں کرائے. تو کوئی ایسا کارنامہ بتائیے. عرفان صاحب کے تو اتنے کارنامے ہیں, کون سا آپ کو کارنامہ بتائیں. سب سے بڑا کارنامہ تو یہی ہے کہ ہمیں وائٹ سلوار قمیض اور کوٹی پہنائی, ہماری ایک صنعت کرائی کہ کراچی الیکٹرانک کے یہ لوگ ہیں. جب ہمارے جو ہے اس زمانے میں مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے آرمی چیف, تو انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا, تو عرفان صاحب نے سب کو بولا کہ وائٹ سلوار قمیض اور کالی کوٹی پہن کے آنا ہے. نمائش پہ پروگرام ہوا تھا, تو وہ مشرف صاحب نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ ہمارے الیکٹرانک کے پریزیڈنٹ ہیں. اسی طرح عرفان صاحب جو ہے, آپ کو میں بتا دوں, ماشاءاللہ چیمبر بہت بڑا نام ہے, لیکن چیمبر والے مجھے کہتے تھے کہ جہاں ہمیں بلاتے تھے اس سے پہلے عرفان صاحب کو بلاتے تھے. عرفان صاحب وہاں موجود ہوتے تھے, چاہے گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور عرفان صاحب بہت چیزوں پہ مجھے بتاتے تھے کہ میمن صاحب ایک وقت آئے گا کہ یہ جتنی چائنا کٹنگ ہوئی ہے ان کو کوٹ خالی کرائے گا. میں بولا ہو نہیں سکتا ہے, آج دیکھ لو ہو رہا ہے. بہت جگہ پہ جو ہے کوٹ انمول ہو گئی ہے چائنا کٹنگ کے اوپر. تو بہت ساری جو ہے ان کے پاس معلومات تھی, وہ ہمیں شکار پہ بھی لے جاتے تھے, اور باقاعدہ ہم لوگوں نے بڑا اچھا شکار کرتے رہے. اور وہ شکار میں دیکھتا تھا, صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے, ہم تو سو جاتے تھے, جب آنکھ کھلتی تھی تو کسی نہ کسی کے اوپر لیب جو ہوتا ہے لیاب ڈالتے تھے کہ اس کو سردی نہ لگ جائے. وہ بہت اچھے دل کے, بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے. سخت تھے. سخت کیوں تھے کہ وہ جیسے
ताजिरों के साथ कोई मसला क्रिएट होता था, ताजिरों को कोई कोस्ट गार्ड उठा के ले जाती थी, कोई एजेंसी उठा के ले जाती थी, फिर इरफान साहब बहुत सख्त हो जाते थे, फिर वो नहीं देखते थे ये कौन है कौन नहीं है, वो करते थे उसूल की बात। मतलब वाली उसूल वाली सिराज कासिम तेली जैसे बड़े सख्त थे और अपने उसूलों पर डटे रहते थे। अच्छा, इरफान साहब की मजीद जो कराची इलेक्ट्रॉन में 4 साल सदर रहे और तकरीबन 28 साल उन्होंने कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन में दुकानदारों के बड़े मसाइल किए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो उन्होंने हल किए जिस पर दुकानदारों ने बड़ा फख्र किया हो। आपको पता है कि एक वक्त ऐसा होता था कि एक स्त्री भी आती थी तो वो स्मगलिंग कहलाती थी और कोस्ट गार्ड आ जाती थी मार्केटों में और कंटेनर रोक देती थी। इरफान साहब खड़े होते थे, उन्होंने एक ज़ाब्ता बनाया कि जो माल आपका कराची के अंदर मार्केट में आ जाता है वो स्मगलिंग का नहीं है। आपके पास सी पोर्ट है, आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास बहुत सारे जो बॉर्डर है वो आप सामान रोकें अगर स्मगलिंग का है। फिर इरफान साहब ने जो है इस बात पे बड़ा जलसा जुलूस भी किया और कोस्ट गार्ड की जो इंटरवीन थी वो ख़त्म कराई। उसको हुकूमत ने माना कि जब अगर आपको पोर्ट पे पकड़ना है माल, स्मगलिंग का है, पकड़े। जब आपके दूसरे भाई जो कस्टम ऑफिसर है पेटीबंद, जब वो माल छोड़ते हैं फिर वो माल आप आके मार्केट से उठाते हो, तो वो इरफान साहब ने ख़त्म कराया। उसके बाद पूरा कराची जो है सुख का सांस लिया, कारोबार करते रहे। इसी तरह से इरफान साहब के साथ आए मैन्युफैक्चर कि भाई हम यहाँ पर जो है स्त्री की मैन्युफैक्चर यहाँ बनाएंगे, उनको इरफान साहब ने बहुत सपोर्ट किया। टेलीविज़न को बहुत सपोर्ट किया। फिर टेलीविज़न के साथ साथ आज आप देख लो कि कराची के अंदर बल्कि पाकिस्तान में हर चीज़ बन रही है, कपड़ा हो या इलेक्ट्रॉनिक का फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, वो इरफान साहब ने बड़ा इनकी मदद की सबकी। मतलब जैसा मतलब सिस्टम आता है उनके साथ देते रहे। तो ये आज देख ले आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आपका जो बाहर जाता था पैसा वो आज आपके फैक्ट्रियाँ लगी हुई है और आपकी चीज़ें चल रही है। अगर वो इरफान साहब को वो एक बड़ा ओहदा देते, वो इसको और आगे बढ़ाते। वो मार्केट के लेवल पे तो थे कि सियासी बंदे नहीं थे, सियासत में कहीं नहीं आते थे, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि इरफान साहब जैसे आदमियों को, मतलब बहुत बड़ी ताकत थी कराची इलेक्ट्रॉनिक की, बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त भी। हमारे जो है चेयरमैन और है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान साहब जो है इरफान साहब के पार्ट 2 है, बिल्कुल इसी तरह काम कर रहे हैं जैसे इरफान साहब करते थे। मुझे याद है इरफान साहब हर किसी का मसला हल करते थे। आज रिजवान भी, हम चले जाते हैं अपनी ऑफिसों में काम के लिए, मगर ये हमारे सदर साहब बैठे होते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जहाँ तक इनकी पोजीशन होती है वहाँ तक जाते हैं, बंदे को छुड़ाते हैं, रात आधी रात कोई भी काम होता है ये करते हैं। मगर सलीम भाई कुछ जगह पे जाते हैं तो वहाँ जब रिजवान का नाम लिया जाता है तो फौरी तौर पर बोलते हैं नहीं इरफान, कहते हैं यार इरफान साहब याद आ गए, जबकि यकीनी तौर पर काम तो कर रहे हैं उनकी निस्बत के मुताबिक, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मगर इरफान साहब तो फिर इरफान साहब तो उनकी तो खूबियाँ कुछ और थी, मगर आने में टाइम लगेगा अभी। मुझे याद है एक दिन हम इरफान साहब और मैं और रिजवान साहब एक दावत में थे, दावत से निकले रात को, तो इरफान साहब ने कहा चलो मेमन साहब इस तरफ, इनका घर है नाजमाबाद में, सामने कटी पारी है, बोले यहाँ से चलो। हम गए गाड़ी रात को ले जाकर हम लोग पहुँचे। मेरा ख्याल है पूरा एक हिंदुस्तान वहाँ बना हुआ है, आप देखो तो बिहारी बाजार और बहुत सारी बनारस मार्केट बनी हुई है पूरा। वो एक थाने में जाके हमने गाड़ी खड़ी की, इरफान साहब ने सचिव को बुलाया, वो भी बिहारी था, उसको बुलाया, बोला ये एक आपने गरीब लोगों को क्यों बंद किया हुआ है? बोला ये इन लोगों ने कब्जा किया। इरफान साहब ने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये गरीब लोग हैं, ये कब्जा करेंगे, माफिया के साथ तो मिले, निकालो बाहर इनको। बाहर निकाला, बहुत गरीब खातून थी, उसका शोर था, बाहर निकाला। हमने उनको अपनी पराडों में बिठाया, उनकी झुपड़ी में जाके छोड़ा। फिर इरफान साहब ने उनको कुछ पैसे दिए, वो बोलते थे इरफान साहब चाय पी लो, आ जाओ। बोला आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो वो ऐसी दुआएं लेते थे, बिल्कुल जो है ना वो ये नहीं देखते कि ये आदमी अमीर है या गरीब है, इसने मुझे पुकारा है चलो। क्योंकि आप भी काफ़ी टाइम हमारे साथ रहे हैं, आपको भी बड़ी नॉलेज है, बड़ी मालूमात है। नस्ता अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नस्ता ये बताइएगा कि बुखारी साहब जो पहले सदस्य थे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के, और इरफान साहब जब फिर उसके बाद जब जीत कर आए, तो जिस तरह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिराज कासिम तेली का डंका बजता था और उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सका आज तक, तो वही सिलसिला इरफान भाई का भी चल रहा है, क्योंकि वो बादशाह थे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K21 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया कि हम अपने
मामलात आपको शेयर करें। आपने जिक्र किया बुखारी साहब का। बुखारी साहब यहाँ 75-76 तक तो थे और इरफान शहीद हमारे उस वक्त चेयरमैन हुआ थे रीगल एरिया के, लेकिन क्योंकि जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट इरफान साहब ने लिए। अभी हमारे सदर ने जिस तरह हमारे सीनियर्स के नाम लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब उसमें से कुछ वफात पा चुके हैं, कुछ हयात हैं। उन्होंने इरफान साहब का भरपूर साथ दिया और सन 86 से मैं जब दुबई से यहाँ आया उस वक्त से मैं इरफान साहब के साथ हूँ और उनका दरीना दोस्त होने के साथ साथ उनका भाई भी हूँ और उनको मैं अपना बड़ा भाई कहता था। अच्छा नासिर साहब, इरफान साहब को 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जुमे का दिन था और 2013 में उन्हें शहीद किया गया और उसके बाद उनकी यादें अभी तक लोगों में गूंज रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक का एक साथी जब रबीउल अव्वल आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ के वो इरफान साहब के लिए दुआ भी करता है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, जनवरी का महीना था, 23 जनवरी और जुम्मे का दिन था 12 रबीउल, जैसा भी आपने कहा। मगरिब में हमारी उनसे गुफ्तगू हुई इरफान साहब से और वो घर जाने के लिए निकले तो अब्दुल्ला कॉलेज के पास कुछ शहर पहुँचे, उन्होंने उन पर फायरिंग की। उसके बाद उनको हम अब्बासी हॉस्पिटल ले गए और अब्बासी के बाद फिर आगा खान ले गए। उस वक्त मैं बस अपने घर पहुँचाता तो स्लाइड चल रही थी कि इरफान इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर पर फायरिंग होगी। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे, हमारे साथ हमारे सारे साथी थे और हम उनको आगा खान शिफ्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से कि 2 या 3 दिन वहाँ रहने के बाद उनको अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास बुला लिया। इरफान साहब के बाद जो खला पूरा हुआ वो ज़रूर उनके शहीद साहबजादे मोहम्मद रिजवान इरफान ने किया और मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो कोटी और वो चश्मा जो शहीद इरफान के वक्त मौजूद था, मैंने जब इलेक्शन हुए और मोहम्मद रिजवान वो सदर हमने नामज़द किया तो हमने वही कोटी पहन कर अपने मौजूदा सदर को इरफान शहीद की कोटी पहनाई थी। तो इरफान साहब की यादें तो कोई भूल ही नहीं सकता, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या कोई और जगह हो। एक हमारे वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब थे, जब यहाँ सर्वे फार्म का इंतज़ा हुआ, हुकूमत ने कहा भी सर्वे फार्म भरें, तो इरफान साहब ने कहा कोई किसी को घबराने की बात नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद था, हमने 17 दिन ये मार्केटें खोली और 17 दिन तक सर्वे फार्म भरे। उस वक्त ब्रिगेड जामिन साहब होते थे, बहुत होते थे, यहाँ बड़े आते थे और हमारे तमाम कारोबार जितने दुकानदार हैं उन्होंने भरपूर कारोबार किया। इरफान साहब की बात पे लब्बैक की। वो 17 दिन दुकान खोलने के बाद हमने सर्वे फार्म किया, तो जब शौकत अजीज़ ने इस्लामाबाद, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, इरफान साहब को इस्लामाबाद बुलाया और तमाम जितने चैम्बर, फेडरेशन और इलेक्ट्रॉनिक से मुंसलिक ताजिर थे उनके सामने उनका हाथ पकड़ के लाए कि ये वो इंसान है जिसने कराची के अंदर सर्वे फार्म भी भरा है और मार्केट भी खोली। तो हमें यह इजाज़त हासिल है कि हमारे शहीद इरफान इतने ज़हीन थे कि वो छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को महसूस करते थे। अभी जिक्र हुआ था कि कस्टम के माल, पोस्ट गार्ड ने 1992 में हमारे यहाँ हाशवी मार्केट है, बहुत मशहूर है, उस पर रेड कर दिया था कि कंटेनर से ही माल चोरी का आया है, डकैती का आया है, किसी का आया। शहीद इरफान वहाँ पहुँचे और उनके साथ मैं मौजूद था, फारूक भाई मौजूद थे और हमारे तमाम लीडरान मौजूद थे। उन्होंने फायरिंग भी की, वो आज फायरिंग के निशान भी अभी तक हाशू में मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ खड़े रहकर सारा माल ऑफलोड करवाया और पोस्ट गार्ड को घुटने टेकने पे मजबूत किया। वो दिन है और आज का दिन है। ना हमारे पास कोई सीआई आती है, ना कोई पोस्ट गार्ड आती है, ना कोई कस्टम का अदर आता है। ये इरफान साहब की बहादुरी की मिसाल है जो उन्होंने दी। नासिर भाई ये बताइएगा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर स्टेशन के बेशुमार मसाइल हैं। जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ गलियों में देखा पानी भर जाता है, तो क्या बल्दियाती इदारों ने कुछ, जैसे रिजवान ने कहा कि हुकूमती सतह सिंह की सतह पर हमारे साथ को तोतली माजे साथ सुलूक है, देखिए तो क्या बारिशें होती है तो उस वक्त यही सूरत हाल होती है? बिल्कुल ऐसे सूरत हाल होती है और मैं अपने सदर मोहम्मद रिजवान और मेरे नायब सदर सलीम अहमद और मेरी पूरी काबीना के साथ हम कई बार ये अब्दुल्ला शाह के बेटे मुराद अली शाह से मुलाकात की। क्योंकि अब्दुल्ला शाह से भी हमारी दोस्ती थी, शहीद इरफान की अब्दुल्ला शाह से भी दोस्ती थी। हमने एक फंक्शन में उनको मदऊ किया था। इस नाते से हमने मुराद अली शाह से कहा, इसको यहाँ ये नाला ब्लास्ट हुआ था अमेरिकानों वाला, हमने यहाँ विज़िट कराया। विज़िट कराने के बाद उनको सारी बातें बताई, देखिए यहाँ पार्किंग प्रॉब्लम है, बारिश होती तो पानी भर जाता है, यहाँ इतना रश है पार्किंग का कि लेडीज़ ख़वातीन तो यहाँ आ ही नहीं सकती, ख़वातीन तो दरगुजर करें आप। इस वक्त यहाँ जो कस्टमर बुज़ुर्ग आते हैं या फैमिलीज़ आती हैं वो आना बंद हो गई हैं। इस सिलसिले में हमने मुराद अली शाह से मुलाकात की, गवर्नर इस्माइल से बात की, नासिर शाह से, मुर्तज़ा से, सबसे बातें की। 2-3 बार उन्होंने यहाँ रात विज़िट भी किया
और ये नाला इमरजेंसी में 15 दिन में उन्होंने बनवाया, लेकिन पुरसाने हाल अभी भी कोई नहीं इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। हमारे साथ हाजी नासिर तुर्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और रिजवान और फारूक साहब से गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी रिजवान साहब, सलीम मेमन और हाजी नासिर तुर्क से बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी। हमारे साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के एक और मेंबर जो रिगल चौक है अब्दुल्ला, तो वहाँ पर उनके चेयरमैन है, तो इनसे भी बात होगी मोहम्मद फारूक साहब से। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक साहब ये बताइएगा कि आपका भी ताल्लुक़ इरफान साहब से काफ़ी रहा और रिगल चौक और अब्दुल्ला हारून रोड के आप चेयरमैन हैं, तो ये बताइएगा कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो सदर है इस वक्त मौजूद है मोहम्मद रिजवान, तो उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे जो सदर साहब हैं मिस्टर ये रिजवान साहब, जो इरफान शहीद के साहबजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन रहता है हर वक्त, हर मामले में, हर चीज़ों के अंदर। तो लिहाजा तौर पे मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे रिजवान साहब जो हैं हर मामले में हमें अपना बड़ा साथ देते हैं। अगर हमारी मार्केट में कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं तो लेकिन रिजवान साहब की इतनी काबिश हमारे साथ होती है कि वो किसी भी मामले में हमें अपने साथ भी रखते हैं और हमारे मामले को हल करने में काबिशें पेश करते रहे। अच्छा, आप रिजवान साहब के साथ भी रहे, उनका दौर देखा, तो उनका दौर कैसा लगा था आपको? पर रिजवान साहब जो दिलेर, हमारे जो सदर शहीद इरफान साहब जो हैं वो बड़े दिलेर हमारे सदर थे और पूरी मार्केट को लेके चलते थे। कोई भी मामला अगर किसी भी मार्केट में खड़ा होता था तो इरफान साहब लबैक कहते थे और किसी मामले के अंदर वो पीछे नहीं होते थे, वो लेके सबको रखते थे। और इतने मामले हमारी मार्केट में दरपेश मसाइल आए, कस्टम के हवाले से, पुलिस के हवाले से, बहुत सारे मामला आए, लेकिन इरफान साहब ने लब्बैक कहते हुए अपने लोगों के सारे मामला को हल किए और खड़े रहे, कभी वो पीछे की तरफ नहीं गए। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मुख्तलिफ आइटम फरोख्त होते हैं। रिजवान ने जब 10,000 से ज़ायद मेंबर्स हैं, तो 10,000 मेंबर को देखते हैं, तो आप क्या उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 10,000 मेंबर के मसाइल हल करने की कभी आपकी सोच हुई है? भाई हमारा मसला ये है कि हमारी जितनी भी मार्केट है उसके मुख्तलिफ चेयरमैन हैं, जो सीनियर चेयरमैन भी हैं, कुछ वाइस चेयरमैन भी है और चेयरमैन भी हैं। और हमारे तकरीबन एसोसिएशन के हवाले से 18 मेंबर की काबीना है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, जॉइंट सेक्रेटरी भी है, चेयरमैन भी हैं और हमारे एमसी मेंबर भी हैं। तो लोगों ने सब अपने अपने काम को बांटा हुआ है और मार्केट वाइज वो सारे अपने अपने काम को हल करते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जो सदर की मशावरा से हल करते हैं, तो जैसा कि इरफान साहब की जो काबिशें थी, जो इरफान साहब ने मार्केट का अपने प्लेटफॉर्म पे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से काम किया था और उसी प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह से हमारे जो भी हाजिर सदर हैं मोहम्मद रिजवान साहब, वो उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और सारे मामला को बखूबी से हल करते हैं। रिजवान, ये बताइएगा कि जब भी ये दूसरी लहर आई कोरोना वायरस की, तो छोटे बड़े ताजिरों की जो तंजीम है, उन्होंने, हुकूमत ने उनसे कोई मशावरत नहीं की और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने का ऐलान कर दिया। तो इसकी क्या वजह है कि हुकूमत जो है फिर वही बात होती है कि आप लोग को नज़रअंदाज क्यों करती है? ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के कौन से लोग हैं जो हुकूमत सिंध को जो बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है आवाम के लिए या ताजरों के लिए, तो उसमें हमेशा मशावरत की जाती है, भाई उनके क्या, आपकी क्या राय है, हम ये एक टाइमिंग रख रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं। तो पहले भी जो एक मरतबा नोटिफिकेशन निकाला गया वो भी बगैर मशावरत के जो है मार्केटें बंद की गई। उसके बाद दूसरी मरतबा जो नोटिफिकेशन निकाला वो भी गलत किया, उस पर हमने आवाज़ भी उठाई और मार्केटें हमारी 8 बजे तक खुली। देखिए, मशावरत से ही कारोबार चलता है, मशावरत से ही एसोसिएशन चलती हैं और मशावरत से ही हुकूमत चलेगी। वजह यह है कि आप किसी पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकते। मीडिया का दौर है, आप लोग मौजूद हैं, कोई भी गलत कोई काम करेगा तो मीडिया उसको दिखाएगा। तो हमारी जो आंख हैं वो आप लोग हैं, आप बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हमने हमेशा कोशिश ये की कि आसानियां पैदा की जाएं ताजिरों के साथ। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो ताजिर जो सबको टैक्स देते हैं, जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, जो ताउन करते हैं, उनको आप आसानियां पैदा करें, उनके लिए मुश्किलात न पैदा करें। हम तो आपको समझ सकते हैं, कारोबार का दौरानिया हमारा सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक है,
उस पे हमें अपना कारोबार करना है। ज़्यादातर जो हमारी मार्केटें में दुकानदार हैं वो किराएदार हैं, वो किराया उनको महीने में देना है। अगर आप किराया नहीं दे पाएंगे तो मार्केटें दुकानें बंद हो जाएंगी। वो अपना किराया भी निकालना है उसको, उसके बाद अपने जो वर्कर है उसकी सैलरी भी निकालनी है, फिर अखराजात में, और उसके बाद प्रॉफिट निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये निकालना इस जो हालात में वो कितना मुख्तलिफ है। अच्छा रिजवान, जब पहला कोरोना आया था तो तकरीबन 8 माह कारोबार बिल्कुल मुतासिर हो गया था, तो कितने मुलाजमिन आपने फारिग किए, और क्या आपने जो मुलाजमिन के लिए यहाँ कुछ ना कुछ आपने रिलीफ दिया, उन्हें कोई आपने पास से फंड किया या उन्हें फारिग कर दिया था? देखिए, अब जब तक के कारोबार चला या दुकानें चल रही थी उस वक्त तो जो उन लोगों ने जो है कोशिश की उनकी सैलरी देने की, लेकिन जब वो किराया नहीं दे पाए तो हमने कोशिश ये की कि हमारी मार्केटों में एक महीने और दो महीने के लोगों ने किराए माफ़ भी किए। ये हमारा दुकानदार जो थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने अपने जो किराए थे वो दो महीने के माफ़ भी किए। इसके अलावा फिर उनकी किस्तें बना दी गई और जो है किराए की किस्तें। इसके अलावा लोगों ने, जो लोग बेयर कर सकते थे, उन्होंने लोगों की तनख्वाहें भी दी दुकानें बंद होने के बावजूद भी। लेकिन एक हद होती है, एक जब आप नुकसान होता जाएगा, जब आपको कारोबार नहीं होगा तो एक टाइम होता है, एक हद होती है कि हम नुकसान बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद लोगों को निकाला भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग जो थे वो दोबारा जब मार्केट खुली कारोबार पे आए और उन लोगों को रखा भी गया। तो अभी हालात बेहतर हुए थे, लेकिन फिर ये दोबारा जो लहर आई उसकी वजह से फिर जो है परेशानियाँ आई हैं। लेकिन हमारे दुकानदारों ने जो है बड़ा नज़्म ज़ब्त और सब्र का जो है दामन हाथ में रखा, उसकी वजह से जो है ये मार्केटें चलना शुरू। और रिजवान ये कहते हैं कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर स्विचिंग की जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर अब्दुल्ला रोड पर, वहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ये बात दुरुस्त है? देखें, SOP 100% कोई भी रख नहीं सकता है। SOP मतलब चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे और जो जगहें हों, 100% नहीं। अगर हम 60-70% भी अगर SOP मलदामत करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और हम कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी मार्केटों में लोग जो है टीमें आती भी हैं, फाइन भी करती हैं, दुकानें भी सील करती हैं, तो उसमें जो है मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि ये अब हमारे दुकानदारों के फेवर में ही है, ताकि लोग SOP मोहम्मदार, क्योंकि हमें कारोबार आगे जारी रखना है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आगे कारोबार जारी नहीं रख सकते। उसकी वजह से जो है हमें जो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो आप बताऊँ, हमारे यहाँ असल में मार्केटों में दुकानें बहुत छोटी हैं, सोशल डिस्टेंस का जो है वो हम नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारी ये दुकानें जो है उसकी जो है आप समझ सकते हैं छोटी छोटी 2x4 की दुकानें, 2x6 की दुकानें हैं, तो उसमें जो है इतना सोशल डिस्टेंस को। लेकिन मास्क हमने खास तौर पे बोला कि आप मास्क जो है पहने। अगर कोई मास्क नहीं पहनता उस पर हम फाइन भी करते हैं अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, मतलब आप फाइन कर रहे हैं या आपने मतलब फाइन करने का इरादा किया हुआ है? बिल्कुल, फाइन जो है वो गवर्नमेंट करती है, सिंध गवर्नमेंट जो है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो फाइन करते हैं। अगर वो दोबारा ये काम करता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी दुकान बंद कर दिया, क्योंकि उससे किसी और को नुकसान ना हो। हम ये चाहते हैं कि अगर ये कोरोना अगर किसी खुदा ना खास्ता अगर होता है तो उससे कोई दूसरा अफेक्टेड ना हो, उसका जो है जरिया यही है कि हम वो दुकान बंद करें। अच्छा रिजवान, एक और भी शिकायत है लोगों की कि यहाँ पार्किंग का बड़ा मसला है और हर जगह पे जो है आपके यहाँ चारों तरफ पार्किंग माफिया का कब्जा है, तो क्या वजह है कि पार्किंग माफिया के लिए हटाने के लिए आपका कोई हुकूमती सतह पे राब्ते हुए? देखिए, पार्किंग माफिया को हमने बाकायदा जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ हमने खतूत अरसाल किए। जो आप DIG ट्रैफिक है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, तमाम लोगों की नॉलेज में ला चुके हैं। क्या वजह है को ऐसा मजबूत माफिया है कि इसको हटा नहीं पाते। हमारे यहाँ जो है वो सिंगल लाइन अलाउ है, उस पर उसके बावजूद भी 3 लाइनें खड़ी करते हैं। हम उसको हटवाते भी हैं, कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। क्या वजह है? ये तो इल्जाम कहा जाता है कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर की जो इंतजामिया वो लगवाती है, ये तो इल्जाम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमारे यहाँ कोई ऐसा, ना हमारा क्या काम है पार्किंग लगवाना, ना हमारा ये ज़रूरत है कि हम पार्किंग लगाएं। हम तो चाहते हैं कि कस्टमर को फैसिलिटेट करें। 3 लाइन में अगर मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं तो उससे जो है नुकसान हमारा होता है। बहुत से लोग दूसरी मार्केटों की मोटरसाइकिलें आके लाके खड़ी कर देते हैं, तो उससे नुकसान हमारा। हम तो चाहते हैं सिंगल लाइन में खड़ी करो। इसके अलावा पार्किंग, जो मैं आपको बताऊं, पार्किंग इतनी बड़े जहांगीर पार्क जो है इतना आपने खर्च किया सिंध गवर्नमेंट ने। आपने एक पार्किंग एरिया बनाया PC के बराबर में, पोलो ग्राउंड के नीचे। आप इसको भी जो है पार्किंग बना सकते थे। ये जितना बड़ा आपने जो जो पार्क बनाया है जहांगीर पार्क में, नीचे आप तकरीबन कुछ 10,000 करीब गाड़ियां पार्क हो सकती थी
अगर नीचे बेसमेंट में आप उसका जो है वो वहाँ जो है आप इंतज़ाम करते, मोटरसाइकिलें पूरे सदर की जो है वो जो आप पार्किंग की गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की यहाँ खड़ी हो सकती हैं, इससे रश भी कम होता और इससे जो है आपका जो हमारा पार्किंग का मसला हल हो सकता है। गवर्नमेंट को तो हमने बार बार खत भी लिखा, लेकिन उसमें जो है उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं किया। अगर गवर्नमेंट चाहती कि ये मसाइल हल करना है, पार्किंग का मसला हल करना है, या जो है आपको जो है लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, तो ये कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्या वजह है? ये पार्किंग माफिया जो है इतना मजबूत है कि उन्होंने नहीं करने दिया। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा रिजवान, आपने एक बात कही कि 10,000 मतलब आपके मेंबर थे और यकीनन लाखों की तादाद में, तो कभी सोचा है आपने कि मोहम्मद इरफान खान ने बेशुमार खिदमत अंजाम दी, तो आप कोई उनके लिए हॉस्पिटल जो आपके मुलाजमीन हैं जो उनको फ्री इलाज होता, तो कभी जहन में ऐसा है कि मोहम्मद इरफान खान के नाम से कोई हॉस्पिटल एक मंसूब हो? कभी कोई जहन आपने रखा, या कोई लाइब्रेरी हो या कोई एक स्कूल हो या इंस्टीट्यूट, तो कभी जहन में आए ये चीज़ें? हॉस्पिटल के लिए तकरीबन हमको 3 से 4 साल हो गए हम इसमें तकदुम कर रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट साहब से भी जो है बात की, इसके अलावा गवर्नर साहब से ये बात की, उनको भी खतूत लेके, सीएम साहब को भी खतूत लेके। अब तो चाहते ही हैं कि सिंध सरकार हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हमें कोई जगह दे, हम उस पर अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल बनाएंगे। जो भी खर्चा होगा वो हम खुद करेंगे। हमारे दुकानदारों के लिए, हमारे जो बेचारे जो यहाँ मजदूर हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनके लिए हम सिर्फ सरकार से जगह मांगते हैं, बाकी और कुछ, बाकी हम खुद अपनी मदद आपके तहत करेंगे, ताकि जो हमारे जो बेचारे लोग हैं जो इतनी महंगी जो ना दीवार ले सकते हैं, ना इलाज कर सकें, तो वो हम जो है उनका इलाज कराएं। तो आपने कोई जगह तजवीज़ की? बिल्कुल, तो हमने गवर्नमेंट को तजवीज़, जगह तो देना सरकार का काम है, हमने उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमने करी भी है। तो कोई जगह देखी आपने? मेरी आखिरी बात जो हुई थी सदर पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा था कि रेलवे हॉस्पिटल एक है, एक रेलवे हॉस्पिटल है, वो आप उसको आप ले लें, आप अडॉप्ट कर लें आप, क्योंकि वो वैसे बंद पड़ा हुआ है। उस पर आप जो है तामीरात जो आप कर सकते हैं, जो आप मेडिकल जो सिस्टम आप लगाना चाहते हैं वो आप वहाँ लगा सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा शेख रशीद से हम आपसे कांटेक्ट कराएंगे कि आप वहाँ जो है वो जगह जो है, लेकिन अब शेख रशीद साहब का जो है दाखिला में चले गए। देखिए क्या बात, कोशिश हमारी बिल्कुल है कि ये एक जो है मेरे वालिद साहब के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया जाए शहर के लिए, जो जितने हमारे दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक्स के और इसके अलावा भी जो बेचारे जो लोग गरीब लोग हैं, उनकी जो है जो सेहत के मुतालिक जो परेशानियां, जो उनकी इलाज वो कर सके। अच्छा रिजवान, बात करते हैं सिराज कासिम तेली, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर भी हैं, और इरफान साहब भी थे, और सलीम मेमन भी हैं, हाजी नासिर तुरुक भी हैं, तो कराची इलेक्ट्रॉनिक डेलीगेशन के बहुत सारे मेंबर जो है चैम्बर के मेंबर्स भी हैं। तो सिराज कासिम तेली तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आपकी वाबस्तगी पड़ी होगी, तो आपने उनको कैसा देखा और क्या पाया? सिराज अली साहब जो बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे, लोगों का दर्द महसूस करते थे, लोगों के लिए काम करते थे, लोग उनकी कराची के लिए बड़ी खिदमत हैं, और वो कोशिश ये करते थे कि कराची को जो है उसका जायज़ मकाम मिले, कराची के ताजरों को जो है वो हर जगह जो है एक हैसियत होनी चाहिए, क्योंकि कराची जब इतना टैक्स देता था तो उसके बावजूद जो है वो कराची के ताजरों से कोई मशावरत नहीं की। चैम्बर हमेशा जो है वो कोशिश ये करता था कि कराची के ताजरों से मशावरत की, क्योंकि कराची मेन हब है पूरे पाकिस्तान का। उनकी खिदमत बहुत हैं, दीनी खिदमत भी हैं, इसके अलावा बहुत से वो हॉस्पिटल और बहुत से स्कूल वो चलाते थे, और एक अलग नुमाया मकाम रखते थे और दर्द दिल रखते थे, और छोटे ताजरों के लिए भी खिदमत की। हमारा जब ये कोरोना का सिलसिला हुआ, मार्केटें बंद होने का, उन्होंने बाकायदा मिनिस्टर साहबान से मुलाकात भी की और हमारे साथ बैठे भी और हमारे मसाइल हल भी किए, उनका भी हमने शुक्रिया भी अदा किया। चैम्बर मेरी दुआ ये है कि चैम्बर एक बड़ा चैम्बर बने जिसमें तमाम लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, छोटे ताजरों को भी। आज तक के चैम्बर में जो है किसी छोटे ताजर को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, तो मेरी ये दुआ है और मेरी ये तमन्ना भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी और भी जो लोग हैं वो एक चैम्बर का सदर जो है छोटा ताजर में, अगर जिस दिन ये चैम्बर का सदर बना तो उसकी जो छोटे ताजर की एहसास महरूमी जो है वो ख़त्म होगी, जो कराची चैम्बर को जो है फिर वो कहेगा कि भाई कराची चैम्बर भी जो है छोटे ताजरों की जो है
वो आवाज़ बनेगा। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के सदर थे और सलीम मेमन के पास चलते हैं क्योंकि इनसे भी सिराज कासिम तेली के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये भी एक चैम्बर के मेंबर हैं। तो हम सलीम मेमन साहब जो कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के नायब सदर हैं, तो उनसे बात करते हैं सिराज कासिम तेली की। सलीम भाई, सिराज कासिम तेली साहब इस दुनिया में तो नहीं है, बड़ी खिदमत है, आपकी मुलाकातें हुई, तो कैसे इंसान थे वो? बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। आखिरी टाइम हम लोग गए थे, इनके इधर खाना भी खाया था। सिराज भाई के इधर मैं था, रिजवान था, हाजी साहब थे, इलियास बलोर था। तो बहुत अच्छे आदमी थे क्योंकि वो उनमें गुरूरी मगरूरी तकब्बरी नहीं थी। कराची में ही पैदा हुए थे और कराची का दुख बहुत नज़दीक से समझते थे। और वो बाज़ वक़्त जो है वो अखबार में भी कहते थे, टीवी में भी कहते थे कि भाई फ़ौज को दे दो 5 साल के लिए तो ये मामला जो है ठीक हो जाएंगे। क्यों? उनको पता था कि जितना कराची का ताजिर टैक्स देने के बाद परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं है, दास रसी नहीं है, तो वो कभी कभी बरस पड़ते थे कराची के लिए। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज देख लो कि उनके इंतकाल पे कितने लोग जमा थे, कितने लोगों को दुख हुआ। बल्कि मुझे तो ये चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत कोई ऐलान करे सिराज भाई के नाम पर, कोई रोड बनवाए, कोई और चीज़ बनवाए, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने काम किया कराची में। आप देखो चैम्बर का उन्होंने 1 रुपया ज़ाया नहीं होने दिया। एक चैम्बर के लिए एक बड़ी जगह ली, आपने देखा है ना, क्लिप्टन पे एक बड़ी जगह ली, बड़ा चैम्बर बनाया, क्योंकि वो कहते थे कि लोग पैसे इधर उधर करते हैं, वो कभी क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह ने उसको बहुत दिया था। तो सिराज भाई से हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। हमारी माशाल्लाह 4 बेटियों की शादी में भी वो आए और हमने इलेक्शन भी लड़ा था सिराज भाई के सामने, इरफान साहब और हमने ग्रुप बनाकर। तो वो रिजवान को भी बड़ा लाइक करते थे, इरफान साहब को भी बहुत लाइक करते थे। लेकिन शुरू में जब चैम्बर बना था तो एहसन मुनीर साहब, सिराज भाई और अपना तारिक सईद से वो लेना चाह रहे थे, तो एक बड़ा हंगामा हुआ था। फिर वो तारिक सईद से जो है चैम्बर हम लोगों ने मिल के लिया था। हमारे साथ सलीम मेमन साहब मौजूद थे। हम हाजी नासिर तुर्क साहब से भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी सिराज कासिम तेली साहब के साथ रहे हैं, इरफान साहब के साथ रहे। इरफान साहब ने इलेक्शन भी लड़ा था चैम्बर का और ये भी उसमें शामिल थे। तो यकीन तो तारिक सईद साहब सिराज कासिम तेली के साथ क्रिकेट खेला करते थे सोल्जर बाजार ग्राउंड में। और मुझे याद है कि जब सिराज कासिम तेली साहब ने एक छक्का मारा तो तारिक सईद साहब की लड़ाई हो गई और तकरीबन 6 माह बाद बंद रही। 1988 में उस साइड एसोसिएशन के जब सदर मुंतखब हुए तो उनके खिलाफ तारिक सईद ने इलेक्शन लड़ा और वो हार गए। तो इसी हवाले से बड़ी खिदमत थी। तो हमारे साथ हाजी नासिर तुर्क साहब। हाजी साहब, सिराज कासिम तेली साहब आपके कैसे रहे? और इरफान साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उनके साथ भी रहे, तो कैसे इंसान थे वो? सिराज कासिम तेली कराची के लिए जो कर सकते थे वो कर चले गए। वो हर वक्त कराची के लिए सोचते थे। हमने उनके अगेंस्ट एक इलेक्शन शहीद इरफान के साथ हमने लड़ा था और हमारे उस वक्त चैम्बर के अंदर 390 वोट थे और कुल वोट्स पड़ते थे 1100 या 1000 रुपये, 1000 वोट। अमीन बाटवा थे, हाफिज चमन थे, हमारे सलीम मेमन साहब थे, मुस्तफ़ा साहब थे, हमारे मेंबर थे। वो हमने उनके सामने इलेक्शन लड़ा। लेकिन जगह इलेक्शन लड़ने के बाद जो क्लैश होता है इलेक्शन में, इसके बाद हमारी दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो गई और सिराज तेली हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते थे। जैसा भी कहा, 2 बार हमने उनकी पेप्सी कोला में लंच भी किया और अभी उनकी नमाज जनाजा में हमारे शहीद इरफान के साहबजादे रिजवान, मैं, सलीम मेमन और दूसरे साथी उनकी नमाज जनाजा में थे। अल्लाह ताला उनकी मफ़त करे। ऐसा निडर इंसान हमने बहुत कम देखा। हमारे साथ हाजी नासिर तुर्क साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन साहब। तो हमारी कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के अहदेदारों से बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई। मोहम्मद रिजवान ने एक बात बहुत अच्छी करी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नर या वज़ीर आला सिंध या सदर पाकिस्तान अगर कोई ज़मीन देते हैं और वहाँ पर मोहम्मद इरफान खान के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जो अपनी मदद आप कहते हैं, तो हम उस हॉस्पिटल के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। यकीन पर हुकूमत को सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें तमगा शुजात भी दिया गया। तो उनकी खिदमत पर अगर हुकूमत उनकी खिदमत को सोचे और सिंध हुकूमत सोचे तो यकीन तौर पर फौरी तौर पर वो ज़मीन का अलाट करे ताकि ये वहाँ एक हॉस्पिटल का ऐलान करे। इसी तरीके से सिराज कासिम तेली के लिए भी हाजी अनिल तैयब साहब ने यही कहा कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत ज़मीन दे, हम चैम्बर अपनी मदद आपके हॉस्पिटल बनाएंगे। मार्केट में बताइए आपके मेहमान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।